Get ready to embark on an extended journey into the world of mountains, where towering peaks pierce the sky, captaining landscapes unfold and uncue easy teams. Defines nature, natural evasion of the earth. Listen now everyone, first we are going to talk about the definition. पहले हम आज mountain की ना definition देखेंगे. He is reading it for you. I want pin drop silence. Listen carefully. चल start. Natural elevation of the earth's surface rising abruptly from the surrounding level. Now we are going to see the key characteristic of it. What is the main characteristic of it? Now see, you all are having some features with you. Listen carefully. You are having some of the other features. If someone want to explain to you your features, then you are going to randomly tell about you that I'm having this nature and that nature. So similarly, even mountains are having some key characteristic. So he's going to read out for you. Read. Key characters: heights, slope, local relief, and geological structure. So the height of the mountain, how much is the height of the mountain, the slope of the mountain कैसे होते हैं, and even the local relief, how when we go on top of the mountain, how much of the relief we get. In that way, we are going to see about these are the key characteristic of mountain. So now we are going to see how the mountains are formed. Formation कैसे होता है mountains का? Tectonic plate collision, volcanic activity, erosion. Okay. So now there are tectonic plate collision. Now there are two mountains, when they collide with each other, they form up such a big mountain. मतलब दो mountain होते, उनको एक दूसरे से जब collide हो जाते, तब एक बड़ा सा mountain form up होता है. Similarly, erosion. जब आपको soil erosion वगैरह पता होगा, साइंस में आपने किया होगा. जैसे जब rainfall होती है, तो it washes away the soil. That is soil erosion. So similarly, when there is rainfall, even from the mountain, the soil is washed away. So even mountains are formed because of erosions also. So there are some climatic condition at the altitude. Altitude का मतलब है height. Height पे कैसा climatic condition होता है? Devil detecting. Decreasing temperature. Roughly 6.5 degrees Celsius per 1,000 meters. Precipitation pattern. Orographic lift cases causes increased rainfall and snowfall. Unique weather. Katabatic winds, clouds, inversions, and alpine storms. So these are the climatic condition. Altitude, height पे कैसे कैसे climatic condition होती है. तो सबसे पहले पीछे backslide. Backslide. पहले वाला slide. So पहले है decreasing temperature. जैसे जैसे आप height पे जाते हो, वैसे temperature decrease होता है. आपको तो पता होगा. जैसे अभी हम यहाँ पे हैं, temperature ज्यादा है.
आप जैसे जैसे हाइट पे जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा। तो रफली कितना टेम्परेचर होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। 1000 मीटर्स पे आप जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेसिपिटेशन पैटर्न, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, जैसे रेनफॉल एक फॉर्म है प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल एक फॉर्म है, हेल एक फॉर्म है, वो भी एक टाइप ऑफ स्नोफॉल है। तो इस तरह से जब प्रेसिपिटेशन होता है वहां पे orographic lift cause increase. Now orographic means what? When mountain is there and suddenly when the wind is blowing and the rainfall is coming towards that direction, the mountain is blocking its way. Because of that there is such type of rainfall which is known as orographic rainfall. उसको हम orographic rainfall कहते हैं। तो यहाँ पे mountains पे always there will be orographic rainfall. Unique weather is there. There are certain weather conditions where it will be landing up with different storms. कभी कभी क्या हो जाता है जब टेम्परेचर ज्यादा इसमें क्लाउड्स में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट ब्लॉक्स एयर, एयर को ब्लॉक करके और फिर रेनफॉल होती है। जब रेनफॉल होती है तो इतनी कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल होती है कि बहुत स्पीड में होती है, उसकी वजह से इट ब्लॉक्स द माउंटेन। इट इज वेरी ह्यूज फॉर्म ऑफ रेनफॉल, और जब वो रेनफॉल ग्राउंड पे आती है इट इफेक्ट्स अ लॉट। Mountains and human culture. Mountain Communities. communities, Unique unique cultures, tradition, and livelihoods. Resources used, meaning mining, forest and forestry and agriculture. Spiritual signature, sacred peaks, pilgrim sites, and folklore. Okay. So now there are certain human communities, human culture is there in particular area. When we are talking about human culture, जैसे आप कोई भी जगह पे रहते हो वहां पे लाइफ होती है, it is all diversity is there, and because of that reason even in mountains there are some communities, group of people रहते हैं उधर, और ये ग्रुप ऑफ पीपल कोई यूनिक कल्चर फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं कि हम जो कल्चर फॉलो कर रहे हैं वही कल्चर वो लोग फॉलो कर रहे हैं, उनका अलग ही कल्चर होता है, इसीलिए हम उनको यूनिक बोलते हैं, सबसे अलग कल्चर। नेक्स्ट वन इज ट्रेडिशन एंड लाइवलीहुड। वो अपनी लिविंग कैसे, जैसे पैसे कैसे कमाते, पहाड़ों पे आपने देखा होगा जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल काम कर रहे हैं वैसे काम नहीं होता है, वो पहाड़ों पे अपनी खुद की लिविंग कैसे, लकड़ियां काटना, जंगलों से लकड़ियां लाना, ऐसे पहाड़ों पे लेके जाना, उनसे अगर वहां एक जगह से दूसरी जगह पे वो पहाड़ों पे लकड़ियां पहुंचाते तब उनको पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से वो खुद अपनी लिविंग का आसरा ढूंढते हैं कि कहाँ से हमको प्रॉपर लिविंग मिलेगी। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स यूज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज माइनिंग। माइनिंग मीन्स यू हैव हर्ड अबाउट खान, कोयले की खान वगैरह होते हैं, वहां पे माइनिंग होती है। तो ऐसे ही अलग अलग एक्सट्रैक्शन होते हैं रिसोर्सेस के। कोल इज वन सच टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइन मिनरल्स। तो वैसे ही वहां पे माउंटेन्स में भी अलग अलग रिसोर्सेज रहते हैं जहां से वो एक्सट्रैक्शन कर पाते हैं। फॉरेस्ट्री रहते हैं, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ये भी फॉरेस्ट्री है। वो लोग फॉरेस्ट में कहाँ कहाँ हमको ज्यादा यूज कर सकते हैं, लकड़ियां यूज कर सकते हैं, दे विल किल एनिमल्स, वहां से वो लोग एनिमल ब्रीडिंग करते हैं। तो ये सब चीजें इन सब में यूज होती है। एग्रीकल्चर इज ऑलवेज वन ऑफ द मेजर ऑक्यूपेशन of India. So that's why we should know that even in the mountains also there will be proper agriculture also done. There are spiritual significance also. I told you already tradition जो रहता है, एक्चुअली इफ यू सी ट्रेडिशन अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर फॉलो होता है, तो यहाँ पे भी ट्रेडिशनली उनका खुद का सिग्निफिकेंस है, खुद का इंपॉर्टेंस है। इनकी वजह से वहां पे वो लोग पिलग्रिमेज साइट होते हैं, जैसे हम काशी जाते हैं पिलग्रिमेज करने के लिए, जैसे हम हज को जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी उनका भी कुछ अलग माउंटेन पे पिलग्रिमेज होता है, तो वहां पे वो लोग ऊपर जाते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल भी साइट है। माउंटेन्स आर ऑल्सो यूज विद स्पिरिचुअल थिंग्स। नेक्स्ट स्लाइड। Explore, respect, protect our mountain. Mountain are essential for our planet's health and human well-being. Let's all do our part to protect the nature's wonders for generation to come. Yes. So we are going to explore. When we now, I'm telling you something, you are learning from me.
So these are exploration of the last bench. Please be quiet. Lavish. So एक्सप्लोर वी आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स. हम अलग अलग चीजें हमको मिल रही है सीखने के लिए, तो हम अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं. हमको रेस्पेक्ट मिलता है. अगर हम आपको रेस्पेक्ट करेंगे, हमको खुद को रेस्पेक्ट मिलेगा. तो इस वजह से ही हम जिस ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करते हैं, हमको उससे रेस्पेक्ट मिलेगा. वी आर प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट. इट्स ऑलवेज द थिंग व्हेनेवर वी आर हैविंग any wherever we are going to any monument area. So are we going to spit out here and there? We are not going to spit. We are going to respect our monuments, no? So when you are getting respect, even we will get respect from you. Mountains are very important, so we should not even spoil that places also. So these are actually, this is the information which we are giving to future generation. तो हमेशा ये जरूरी है कि हमेशा future generation को जो हम आज सीख रहे हैं, तो वो आगे की generation को भी काम आना चाहिए. Next slide. So these are the major questions. We are going to read one by one. Slideshow. Slideshow नहीं इसमें. Slideshow. चलो read करो. What is the highest mountain peak in the world? Okay, what is the highest mountain peak in the world? Yes. So it is, raise your hand. No chorus answers. Raise your hand. Yes. That boy. Yes. What's your name? Aryan. Yes, it's right. It's Mount Everest. Next question. Which mountain runs along the border between France and Spain? France and Spain. Okay, which mountain range is running? Just it is around which one? France and Spain. Which mountain range? Anyone knows? The Pyrenees. Yes, Pyrenees. Second one. Third one. Third one. What is the process by which mountains are formed? Yes, I just now explained to you which type of mountains, which type of rainfall they get over there. किस type की rainfall मिलती है mountain पे? Orographic मिलती है, तो उसका हम बनाते हैं orogenisis, which involves the movement of tectonic plates. Which mountain is known for its unique flat chopper shape? Okay, tell me which mountains are there. Someone can read it. Anyone? You read? Puneetam? Loud. Here you can. I'll zoom it. Located in Venezuela. 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 So Mount Roraima located in Venezuela. Next one. Which is the fifth? Which is the mountain that has been formed by volcanic activity? Yes, when mountains are there and volcanic activity is going on inside, then which one it is? It is volcano. So you should understand whenever there is eruption of volcano, it is erupting volcanic things only. So it is volcano. Next one. Which mountain range is home to the highest peak in the North America? So in North America, yes, the Alaska range. Next. What is the term for a mountain climber? Yes, when the person is climbing mountain. I want last benchers to answer. Mayuresh, please stand up and answer. Stand. Lavish, both are same. Lavish and Mayuresh, both are same. Yes, stand up, Mayuresh. Tell me, who are the people who are climbing mountains? Read Karan. Yes, Lavish. Mountaineers. Okay, it is mountaineers. Next one. Which mountain is known for the challenging climb and Extreme weather conditions? Yes, which mountain is known for its challenging climb? Aryan, you got chance. Yes, the boy. Putya. K2 mountain. Now K2, you have to read the whole thing. For K2 located on the border between, it is Pakistan and China. So you should know the whole information. Okay, next one. What is the process by which mountains are eroded over time? Yes, see, I have told you when about erosions. I have told you when rainfall is there, then it is washing away all the soil. That is soil erosion. But on the mountain, usually which type of conditions are going on? Yes, last point. What do you mean by weathering? आपको पता है weathering क्या होता है? Anyone? No? Breaking down of rocks. When rocks are breaking down into small pieces, that is called weathering.
Okay, and this is erosion, which I have already told you. Sit down. Very good. Next question. Which mountain range runs along the eastern Coast, coast eastern or coast. North America? Again. Which mountain range runs along the eastern coast of North America? Anyone knows? Any geography teacher? No? Alaska? Rocky Mountains. Rockies. Oh, sir is here. No? I don't. But tried it. Tried his level. Okay, so finish now. So we have finished here with this. If you have any doubt, you can ask sir. Please. देखो माउंटेन माउंटेन क्या बोलते हैं देखते ना मेरे मम्मी को लड़कियां होते मेरे टाइप के माउंटेन दिखते हैं ना दिखते हैं क्या माउंटेन में सभी अपनी जगह होगा तो तुम्हें ये सुना है क्या महाराष्ट्र की सबसे तो तुम्हें ये जगह सुना है तो वही एरिया वाला एरिया में है एक मुश्किल है वो जगह प्लान है वो उसके बारे में अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये जो हमारा है ना माउंटेन है ना उसका पहले ना डेफिनेशन देखते हैं माउंटेन माउंटेन का डेफिनेशन क्या होता है प्लेटो सुने होगी जिनकी हाइट होती है बिल्डिंग के लिए प्लेटो जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है उसके कहते हैं एक माउंटेन कहते हैं अभी ये माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है हमने सुना होगा कि हमारा क्या हो रहा है हिमालय की हाइट बढ़ रही है पता है ना लोग कितना कितना सेंटीमीटर है हाँ 2 सेंटीमीटर बढ़ती है ऐसा तो ये क्या है कि कैसे बढ़ रही है विद टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट होती है तो टेक्टोनिक प्लेट क्या हो रही है एक दूसरे से टकरा रही है अब एक टकराने से क्या हो रही है फिर से ऊपर ये हो रहा है इस वजह से क्या हो रहा है माउंटेन का फॉर्मेशन उसे क्या कहते हैं ओरोजेनेसिस उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है ओरोजेनेसिस प्रोसेस अब ये ओरोजेनेसिस प्रोसेस का थोड़ी ग्लेशियर के पास बना हुआ है नहीं ना इससे क्या है बच्चे बहुत मतलब हजारों साल लगते हैं इसलिए ये प्रोसेस भी कैसा है धीरे 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 होता है बराबर अभी ये कुछ अभी उसमें कुछ है ना इम्पोर्टेंट है ना वर्ड वर्ड ऑफ अ माउंटेन रेंजेस है पहले हिमालय हिमालय किधर है हिमालय माउंटेन रेंजेस है हमारे इंडिया हिमालय बहुत सारा एक्सटेंड हो चुका है अभी इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है बताइए जो हमारा लेवल है अंडमान और निकोबार की तरफ ये ना अभी ये दूसरा लेवल टू क्या है हिमालय का एक्सटेंशन है मतलब हिमालय से आगे बढ़ते हैं सभी जाने के बाद म्यांमार से जाने के बाद समुद्र के नीचे गए और उस पार्ट से ना उसमें से क्या हुआ ऊपर उठ रहा है उसे क्या बोलते हैं हम कौन सा है वो हमारा आइलैंड नाम क्या है उसका अंडमान और निकोबार वो क्या है वो एक हिमालय का ये एक्सटेंशन है और हिमालय किधर है इंडिया की और सबसे यंगेस्ट कोल्ड माउंटेन ये क्यों बना है दो प्लेट के बारे में सुना होगा एक कौन सी यूरोशियन प्लेट और दूसरी इंडियन प्लेट जब यूरोशियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे से टकराई तब क्या हुआ ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद कौन सा है एंडीज एंडीज क्या है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज सोर्स ऑफ द अमेज़न रिवर साउथ अमेरिका ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के नीचे वाला कौन सा है साउथ अमेरिका ब्राजील ब्राजील में क्या रिवर मिलती है मतलब वो साउथ अमेरिका के इसमें कौन सी अमेज़न रिवर है अमेज़न रिवर ना सबसे ज्यादा है एंडीज इस पे रहती है फिर उसके बाद कौन सा है रॉकीज रॉकीज क्या है ये नॉर्थ अमेरिका में किधर है नॉर्थ अमेरिका में तो हमारा ये माउंटेन रेंजेस है रॉकीज उसके बाद आल्प्स आल्प्स किधर है इट इज द यूरोपियन रेंजेस म्हणजे ना यूरोप में कौन सा है कौन सा माउंटेन रेंजेस है आल्प्स है अबे ये क्या है कि जो हमारा ना मैक्सिमम जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा टेंपरेचर तो कितना
166 सेंटीमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे ना, सॉरी मीटर हम ऊपर जाएंगे ना, तो कितना डिग्री घटेगा? 1 डिग्री। और 1000 मीटर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीमीटर घटता है। ये मतलब approximate value है। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन पैटर्न। अभी क्या है कि हमने कौन से हमें क्या मिलती है? बारिश मिलती है, बराबर। अब ये क्या करती है, जब विंड जाएंगे, विंड जाने के बाद वर्टिकल जाके माउंटेन पे, हिमालय पे जाकर टकराएंगे, फिर उस एरिया में ना सबसे ज्यादा बारिश करते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम? ओरोग्राफिक रेनफॉल, मतलब जो माउंटेन की वजह से रेनफॉल होती है। तो ये क्या है, उसका इम्पोर्टेंस भी है। दूसरा मतलब यूनिक वेदर, अगर हम ऊपर जाएंगे तो सब भी किससे ढका होता है? हिमालय सबसे किससे ढका हुआ है? नीचे से ढका हुआ है। मतलब ऊपर एक ही टाइप का ऊपर दिखते हैं, हिमालय दिखते हैं। तो ये क्या होता है, क्लाइमेट वेदर क्या होता है, सेम होता है। इस वजह से ना उधर जो हमें ना इकोसिस्टम भी है ना सेम ही दिखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी ऑन हाई। अभी क्या है कि हमने देखा होगा काफी पहले भी कुछ आएंगे तो काफी एलिमेंट हो जाती है, वो किस हिमालय की वजह से। और जो इसमें सबसे ज्यादा हरियाली जंगल है वो किस वजह से? हिमालय की वजह से। क्योंकि ना वो क्या करता है, वो विंड्स को रोकता है और उसका एरिया सभी बारिश गिरती है उसी वजह से। आगे जाने के बाद क्या है, माउंटेन एंड ह्यूमन कल्चर। अभी है ना क्या है, जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे हिमालय मतलब जैसे कपड़े पहनते होंगे, ऊपर ठंडी को इतना कपड़े नहीं अलग हो गए, बराबर। इनका कल्चर भी अलग है। तो वो क्या क्या है, माउंटेन का वो क्या कहते हैं, उसका कल्चर नहीं होता है, वो क्या ज्यादा से ज्यादा हमें जो ये सुना होगा ना, कौन से बकरवाल, बकरवाल साइड से जो क्या करते हैं, मतलब गाय भैंस हो, गाय बकरियां उसे चराते हैं। फिर सबसे ज्यादा शिप का ये किधर होता है? सबसे ज्यादा शिप किधर होते हैं? कश्मीर में होते हैं ना, ऐसा क्यों? और मतलब उनका कल्चर वैसा है ना उधर वाला एरिया, तो उस वजह से। फिर रिसोर्सेस यूज, अभी है ना माउंटेन का यूज किस वजह से, किससे लेकर आते हैं? माइनिंग के लिए। सबसे ज्यादा मिनरल किधर होता है? सिस्टम पे होता है ना, माउंटेन वाले रीजन पे। फॉरेस्ट्री, मतलब जो हमें जो चीज चाहिए, फॉर एग्जांपल जो पाइन ट्रीज है, जो हमें ये पेजेस बनते हैं वो किधर बनते हैं? ज्यादा से ज्यादा माउंटेन ये नदी चीज मिलते हैं ना, तो उसका हम यूज करते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी है ना इधर होता है। कौन सा वाला एग्रीकल्चर? ये वाला, मतलब जो शेरी पालन, मेंढी पालन, वो शिप से करते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं वो? बकरी, बकरी चराते हैं ना वो। फिर उसके बाद स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। अभी देखो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ये ना हम क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं। और वो धन पूजा, वो क्या करते हैं, माउंटेन्स की पूजा भी करते हैं। तो ये क्या है, कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। मोस्ट ऑफ द सैक्रेड पिक्स किधर है, मतलब कुछ पिलग्रिमेज साइट्स किधर है हमारी? इधर ही है ना, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पे ही होती है। नेक्स्ट कौन सा है? द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन कंजर्वेशन। फिर क्या है, इन्वायरमेंटल थ्रेट। अभी क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, वो जो हमारे आइस का हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। अब जब आइस मेल्ट होगी तो पानी नीचे आएगा, मतलब वो मेल्ट होगा, पानी नीचे आएगा। उसके बाद वो क्या करता है, ये साथ में आने के बाद फ्यूचर वैल्यू में आता है। जब ग्लेशियर में लगता है, ग्लेशियर नीचे आता है, उसकी यूनिट वैल्यू कर दिया ना। तो इस वजह से क्या है, ये डिटरमाइन है किसके लिए? माउंटेन रेंजेस के लिए। कौन सा? क्लाइमेट चेंजेस। फिर उसके बाद है ना ग्लेशियर मेल्ट, वही कंजर्वेशन एफर्ट्स। फिर हमें ना इसे क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए ना। ये क्या इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हिमालय इंडिया में ना उस साइड का जो कौन सा नॉर्थ ईस्ट वाला साइड है, उससे वो क्या होता, सभी ठंड से ढका हुआ होता। क्यों? क्योंकि ना साइबेरियन रीजन है। साइबेरियन रीजन किधर है? रशिया में। उधर से कौन सी विंड्स आती है? कोल्ड विंड आती है। वो कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट कौन करता है हमें? हाँ, हिमालय। और जो हमारी बारिश भी है ना, बारिश भी रोक के है ना, सबसे ज्यादा बारिश इंडिया में होती है, वो किस वजह से होती है? हिमालय की वजह से होती है। इसलिए इसे प्रोटेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है।
तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम इसे? पॉल्यूशन कम करना होगा। उसके बाद एक्सप्लोर, रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट आवर माउंटेन्स। फिर क्या है कि अभी इसका ये तो ये हुआ, फिर उसके बाद एक्सप्लोर क्या करते हैं, ट्रेकिंग के लिए जाते हैं माउंटेन पे, हमें अच्छा लगता है ट्रेकिंग करना और तो ये क्या है, फिर इसका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और उससे क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट भी करना चाहिए हमारे माउंटेन। फिर अभी एक क्वेश्चन देखिए, कोई डाउट है? फिर पूछोगे माउंटेन के बारे में, कोई डाउट है? हाँ पाकिस्तान और चाइना, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट कौन सा है? बट हम क्या मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि हम क्या है, पाकिस्तान को कश्मीर मानते हैं और हम उसकी धीरे धीरे मानते हैं इसलिए। बट प्रेजेंट कैसे बोलते हैं कि अभी फिलहाल में प्रेजेंट में किधर है? कांचनजंगा। कांचनजंगा किधर है? सिक्किम में। ठीक है, उसके बाद है ना, जो ये फिर ऑर्गेनिक एक्टिविटी में क्या बोलते हैं, माउंटेन बनते हैं, उसी का क्या बोलते हैं हम? हाँ, ऑर्गेनिक एक्टिविटी से भी माउंटेन बनते हैं ना। फिर वही वही उसका एग्जांपल है, पता है क्या? मतलब ऑर्गेनिक एक्टिविटी से इंडिया में एक माउंटेन बना है, ये पता है क्या मुझे? वो उसका एग्जांपल है। मतलब वो पहले माउंटेन वोल्केनो था, अब वो क्या हो गया, डेड हो गया, मतलब अभी उसमें लावा नहीं है, तो क्या होगा उसका मतलब चेंज किस में हो गया, माउंटेन में हो गया। फिर व्हाट इज द टर्म फॉर अ माउंटेन क्लाइंबर? जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? माउंटेनियर। फिर फर्स्ट वुमेन को जो माउंटेन माउंटेन क्लाइंब किया। अभी वेदरिंग एंड इरोजन, व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच माउंटेन आर इरोडेड ओवर टाइम? मतलब हमारा यहाँ माउंटेन क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है ना, मतलब कम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? दो वजह से, एक वेदरिंग और इरोजन की वजह से। अभी ये क्या है कि जो हमारा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जो ये भी क्या हो रहा है, ग्लेशियर आइस मेल्ट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि वो नीचे आ रहा है, इस वजह से हम उसके साथ जो है बाकी की जो मटेरियल है वो भी नीचे लेके आ रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, उसका इरोजन हो रहा है। और वेदरिंग क्या होता है कि वेदरिंग जो अपना टेम्परेचर है, टेम्परेचर से क्या होता है कि जो हमारे रॉक्स होते हैं, ब्रेक होते हैं, जब एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होके क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। और फिर बारिश में भी क्या होता है कि जब एक पत्थर है, पत्थर में क्या होता है, पानी ये होगा, क्या होगा, पानी जमा होगा। पानी जमा होने से बाद ठंड में रात को क्या होगी, ठंड ठंड के वजह से क्या होगा, उसका ट्रांसफर किस में होगा, आइस में होगा। और आइस की डेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो वो क्या करेगा, फिर ज्यादा प्रेशर डाल के ना उसे और तोड़ेगा। फिर अगले दिन जब बारिश होगी तो क्या होगा, अगले साल वो और पानी और एरिया घेरेगा, और एरिया घेरने की वजह से क्या होगा, उसका फिर ट्रांसफर किस में होगा, आइस में होगा। फिर वो ज्यादा, फिर और ज्यादा प्रेशर डालेगा। फिर ऐसा करते करते है ना, वो क्या होता है, ऐसा रॉक टूट जाता है। उसे क्या कहते हैं, ऐसे जो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। समझ में आया इतना? कोई डाउट? अभी वोल्केनो क्या होता है, जो लावा आता है, लावा क्या होता है, जो हमारे अर्थ के हमारे अर्थ की ये ना बहुत आगे है ना, वो आगे बढ़ते जाने की वजह से जो हमारे अंदर के रोग थे वो रोग पिघल जाते हैं। और पिघल जाने से मॉलिक्यूल का मॉडिफिकेशन होता है, ये लावा में होता है। फिर ये लावा में कैसे बाहर आता है, अब जब बाहर आएगा जमीन पे, जमीन पे आने के बाद क्या करता है, वो
ऐसे नीचे आएगा, नीचे आने के बाद उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, मतलब वो ठंडा हो जाता है, फिर वो क्या तब में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ऐसे ही कर करके क्या होता है, उसका कन्वर्ट जल्दी होता है ऑर्डर। ठीक है मैम, लिख लो। एक मिनट है ना, फाउंडेशन